1. New Zealand or Aotearoa, is an island country in the southwestern Pacific Ocean. It consists of two main land masses, the North Island, Te Aikeamaui, and the South Island, Te Waipounamu, and over 600 smaller islands. It is the sixth largest island country by area and lies east of Australia across the Tasman Sea and south of the islands of New Caledonia, Fiji, and Tonga. The country's varied topography and sharp mountain peaks, including the Southern Alps, Katuratirai Ote Moana, owe much to tectonic uplift and volcanic eruptions. New Zealand's capital city is Wellington, and its most populous city is Auckland. Unique wildlife. New Zealand is home to the kiwi, a flightless bird that's the national symbol, and the kea, the world's only alpine parrot known for its intelligence and mischievous behavior. Natural wonders. The country boasts stunning landscapes, including Milford Sound, a breathtaking fjord, and Tongariro National Park, a UNESCO World Heritage Site with volcanic wonders. Innovative achievements. New Zealand was the first country to grant women the right to vote in 1893 and is known for its progressive social policies. Biodiversity hotspot. With no native land mammals except for two bat species, New Zealand's ecosystem is unique, featuring species like the tuatara, living fossil, reptile. Cultural richness. The indigenous Maori people have a profound influence on New Zealand's identity, with traditions like the haka adding to its cultural richness. The Hobbit economy. The Lord of the Rings and the Hobbit films pumped billions into the economy. The government even appointed a minister for Lord of the Rings to ensure they made the most of the film's success. Christchurch has a reputation for being an English city, with its architectural identity and nickname the Garden City due to similarities with garden cities in England, but also has a historic Maori heritage. Christchurch has a temperate oceanic climate with regular moderate rainfall. Queenstown is known for its tourism businesses, especially adventure and ski tourism. Queenstown is an expensive place to live, and house prices are regularly in the millions. दुनिया के कोने में मौजूद जजीरों का एक मुल्क, आखिर ये सिनेमा, कल्चर और प्रोग्रेसिव सोच का एक ग्लोबल हब कैसे बन गया? आइए आज समझते हैं न्यूजीलैंड के इन शानदार मनाजिर और इसकी मुनफरिद तारीख को, जो इस मुल्क की असल पहचान है। आपने शायद सुना हो, न्यूजीलैंड को लंबे सफेद बादलों की सरजमीन यानी ओटेरोआ भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी एक और पहचान भी बन गई है। ये वो जगह है जहां सिनेमा की तारीख की कुछ सबसे बड़ी फिल्में शूट हुई हैं। सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? बिल्कुल, न्यूजीलैंड तो जैसे एक दूसरा हॉलीवुड बन चुका है, और उसकी वजह है उसके दम बखुद कर देने वाले मनाजिर, जो दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए एकदम परफेक्ट बैकड्रॉप बने। और ये मनाजिर सिर्फ मुतासिर कुन ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मुतनव्वे भी हैं। चलें एक तेज रफ्तार सफर करते हैं। सबसे पहले ये शानदार फ्योर्ड्स, जिन्हें बर्फानी दौर में ग्लेशियर्स ने तराशा था और आज ये समंदर से सीधे ऊपर उठते नजर आते हैं। फिर दूसरी तरफ आपको मिलेंगे फाल आतिशफिशा, जो जमीन के अंदरूनी ताकत का सबूत हैं। ये एक तरह से मुसलसल याद दिलाते हैं कि इन जजीरों की बुनियाद ही आतिशफिशानी है, यानी वो आग जिसने सरजमीन को बनाया। और आखिर में हजारों किलोमीटर पर फैले सुनहरे साहिल, जो एक बिल्कुल ही अलग किस्म की कुदरती खूबसूरती पेश करते हैं। ये सब मिलकर न्यूजीलैंड के मनाजर की हैरत अंगेज वैरायटी को दिखाते हैं। तो ये सब कुछ जुड़ा कैसे है? असल बात यह है कि यह सिनेमैटिक सरजमीन आग और बर्फ से बनी है। न्यूजीलैंड दो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद है, और इसी हलचल की वजह से वो हैरानकुन जुग्राफियाई तनव्वुर पैदा हुआ है जो हमने अभी अभी देखा। लेकिन किसी भी जमीन की कहानी उसके लोगों के बगैर तो अधूरी है। तो अब चलते हैं माजी में और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, जब पहले मुसाफिरों ने इन जजीरों को खोजा और उन्हें अपना घर बनाया। तो बात है तकरीबन 1280 ईस्वी की, जब पॉलिनेशियाई मल्लाह समुंदर में चलने वाली अपनी खास कश्तियों, जिन्हें वाका कहते हैं, में कई लहरों में यहां पहुंचे। और फिर तकरीबन 1350 तक उन्होंने इस नए माहौल में ढलकर एक मुनफरिद माओरी सकाफत को जन्म दिया। उन्होंने ही इस सरजमीन को नाम दिया आउटारोआ। आज भी न्यूजीलैंड का माओरी नाम यही है, जिसका तर्जुमा अक्सर लंबे सफेद बादल की सरजमीन किया जाता है। यह नाम लोगों और उनके नए घर के बीच के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। फिर सदियों बाद एक नई आमद ने तारीख का रुख ही बदल दिया। ये कहानी है एक मुआहदे की, दो कौमों की और एक नए मुल्क की पैदाइश की।
1642 में डच मोहिमजू एबेल तस्मान ने पहली बार इन जजीरों का देखा। फिर 1769 में कैप्टन जेम्स कुक ने यहां की साहिली पट्टी का नक्शा बनाया, जिसके बाद यूरोपीय राब्ता बढ़ने लगा। लेकिन इस राब्ते के साथ एक तबाहकुन चीज भी आई, मस्केट यानी बंदूकें। इसी की वजह से मस्केट वॉर शुरू हुई, जो कई दहाइयों तक चले और जिसने माओरी मुआशरे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इसी कशीदगी के बीच 1840 में साइन हुआ वाइटेंगी का मुआहदा। अब यहां एक बहुत बड़ा मसला था। इसके इंग्लिश वर्जन के मुताबिक माओरी ने बर्तानिया को सॉवरेंटी यानी अपनी पूरी की पूरी खुदमुख्तारी दे दी, लेकिन माओरी जुबान के वर्जन में लफ्ज था कोवंतांगा, जिसका मतलब था गवर्नेंस यानी हुकूमत करने का इख्तियार, जबकि तीनों रंगारेतांगा यानी अपनी सरदारी या खुदमुख्तारी उन्होंने अपने पास रखी। तो ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन की गलती नहीं थी, यही वो नुक्ता था जो आगे चलकर जमीन पर हुकूक और बहुत से तनाज़ात की जड़ बना। इसी पेचीदा तारीख से एक नई शनाख्त ने जन्म लिया। आइए जदीद दौर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये खीवी शनाख्त कैसे इतनी तरक्की पसंद, मुतनव्वे और मुनफरिद बनी। साल था 1893। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने तमाम खवातीन को वोट का हक दिया। ये एक तारीखी लम्हा था जिसने इसे एक तरक्की पसंद मुआशरे के तौर पर दुनिया के नक्शे पर कायम किया, और ये मिरास आज भी कायम है। और आज की बात करें तो ये शनाख्त बहुत ही वाइब्रेंट और मल्टी कल्चरल है। जरा 2023 की मर्दमशुमारी के इन आदादो शुमार को देखें। यूरोपीय नस्ल के लोग अक्सरियत में हैं, ठीक है, लेकिन माओरी, एशियाई और पैसिफिक लोगों की भी एक बड़ी आबादी है। और एक दिलचस्प बात, ये टोटल 100% से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में लोग खुद को एक से ज्यादा कौमियतों का हिस्सा मान सकते हैं। ये चीज इस मुल्क के अमीर और मुतनव्वे विरसे को बहुत अच्छे से दिखाती है। और ये कीवी की इस्तिलाह ये न्यूजीलैंड के लोगों के लिए एक आम सा नाम है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुल्क के एक प्यारे ना उड़ने वाले परिंदे का नाम भी है और कौमी शनाख्त की एक बहुत मजबूत अलामत भी। तो आज न्यूजीलैंड दुनिया में कहां खड़ा है? चलें आलमी सतह पर उसके किरदार, इसकी मईशत और मौजूदगी पर एक नजर डालते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है। ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है, और यही मुल्क का सबसे बड़ा माशी और सकाफती मरकज भी है। मुल्क की माइशत का इन्हसार बड़ी हद तक तिजारत पर है और खास तौर पर ज़राअत पर। यह चार्ट दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट के असल सतून क्या हैं, जिनमें डेयरी मसनूआत, गोश्त और लकड़ी की मसनूआत सरे फहरिस्त हैं। अगर आलमी सतह पर देखें तो न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता, आज़ाद तिजारत वाली मईशत है। ये फाइव आइज इंटेलिजेंस इत्तेहाद का एक अहम रुकन है। इसके अलावा अमन, जमहूरियत और कम करप्शन के मामले में इसकी रैंकिंग हमेशा बहुत ऊंची रहती है। और हाँ, टूरिज्म, इसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से यह भी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इस तरह हम पहुंचते हैं आज पर, एक ऐसे सवाल के साथ जो न्यूजीलैंड के मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा। एक दूर दराज जजीरों से आलमी स्टेज तक का सफर। अब ये मुल्क अपनी दो सकाफती बुनियाद, तनाज़ात से भरी तारीख और एक बढ़ते हुए कसीर सकाफती मुस्तकबिल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेगा? यही वो चैलेंज और मौका है जिसका सामना आज आउटारो यानी न्यूजीलैंड को है। और ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।